Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is methods of training. Methods of training. There are different methods of training, such as continuous training method, weight training, circuit training, fartlek training, growing the stroke training, isotonic, isometric and isokinetic training methods. ये सारे जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं, इनसे हम प्रिपेयर करते हैं एक एथलीट को, ताकि वो किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में अच्छा परफॉर्म करे. इट इज एक्चुअली ए प्रिपरेशन. These training methods are preparation for any sports event. Like as जैसे हम पार्टिसिपेशन करते हैं, जब हमारे एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेशन करते हैं बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में, जैसे ओलंपिक गेम्स, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या किसी फुटबॉल इवेंट में, क्रिकेट इवेंट में जो खिलाड़ी हमारे पार्टिसिपेशन करते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग मेथड्स हैं. और जब जो एक कोच होता है, वो कोच इन्हीं ट्रेनिंग मेथड्स को इस्तेमाल करके अपने खिलाड़ियों को प्रिपेयर करता है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए. एंड दोज ट्रेनिंग मेथड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट as for the games and sports are concerned. सबसे पहले अगर हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड देखें, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड was developed by Ernest Van Aken. Ernest Van Aken. Ernest Van Aken. He was the German physician and coach. And his training method, this continuous training method, means that exercises, an athlete, he has to perform the exercises without rest periods, without intervals. And this training method got popularity in the late 1920s. 1920 के बाद ये वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हुआ. यानी जो कोचेस हैं उन्होंने इसको अप्लाई किया, इस ट्रेनिंग मेथड को. इस ट्रेनिंग मेथड्स के 3 टाइप्स हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के. द फर्स्ट वन इज slow pace continuous method. Slow pace continuous method. Slow pace continuous method. This method is basically used by cross country runners. Cross country runners, marathon runners, long distance runners, because it helps us
to develop aerobic endurance. Aerobic endurance. Aerobic means the exercises we perform in presence of oxygen. The presence of oxygen. Endurance means it's the ability to deliver oxygen and nutrients to the tissues and remove wastes over the sustained period of time. This is endurance. Endurance develop करने के लिए long runs and swims, they are the best methods to improve endurance or to increase endurance. इसलिए यहां पे हम लॉन्ग रन्स की बात करते हैं, इससे हम एरोबिक एंड्योरेंस डेवलप करते हैं. इसमें से एक एथलीट जो होता है उसकी स्पीड लो होती है, स्लो स्पीड होती है इसकी, और जो ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन, वो होती है 1 hour to 1 hour and 30 minutes. And the distance covered is 15 to 35 kilometers. 35 kilometers. And with the help of this slow pace continuous method, we develop aerobic endurance. Aerobic endurance. And the number second is fast pace continuous method. Fast pace continuous method. This training method is used by sprinters, middle distance runners, sprinters or middle distance runners, We perform this training method with fast pace or with fast speed, and with the help of this training method we develop anaerobic endurance. Exercises we perform without the presence of oxygen. Without the presence of oxygen. क्योंकि इसमें हमें जो 100 मीटर रनिंग जो हम करते हैं वो हमें कंप्लीट करनी होती है एज फास्ट एज. हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और इस बहुत कम टाइम में हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना होता है. Therefore, we run as fast as possible. जितना फास्ट हम में एबिलिटी है इतना फास्ट हम इसमें दौड़ने की कोशिश करते हैं. और इसमें जो ऑक्सीजन जो डिमांड होती है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की वो ज्यादा होती है और सप्लाई इंसान वो कम आती है, क्योंकि इंसान बहुत फास्ट दौड़ता है तब जाकर, क्योंकि उसको बहुत फास्ट दौड़ना होता है और उसको अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करनी होती है. When we perform these exercises, जब हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं इससे हम एनारोबिक एंड्योरेंस डेवलप करते हैं. यानी और वी कैन से द एक्सरसाइजेस विच वी परफॉर्म विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है इसमें. यह है फास्ट पेस कंटिन्यूअस मेथड. उसके बाद वेरिएबल पेस कंटिन्यूअस मेथड. नंबर 3, वेरिएबल पेस
continuous method. Variable pace continuous method. In this the speed keeps changing. इसमें हम स्पीड चेंज करते हैं, यानी कभी हम फास्ट ज्यादा दौड़ते हैं, कभी स्लो दौड़ते हैं. And with the help of this training method, we develop both aerobic as well as anaerobic endurance. इससे हम दोनों एरोबिक भी या एनारोबिक एंड्योरेंस भी डेवलप करते हैं. दिस इज वेरिएबल पेस कंटिन्यूअस मेथड. और ये हम ज्यादा से ज्यादा इसमें से 10 to 15 किलोमीटर्स 10 to 15 किलोमीटर्स दौड़ते हैं. और ड्यूरेशन जो इसमें होती है वो होती है 30 मिनट्स की. 20 to 30 मिनट्स तो ड्यूरेशन होती है. And the distance covered is 10 to 15 kilometers. This is variable pace continuous method, and this training method helps us to develop both aerobic as well as anaerobic endurance. This continuous training method, it helps us to develop endurance, both aerobic as well as anaerobic endurance. उसके बाद ये एक ट्रेनिंग मेथड है. नंबर सेकंड, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड. फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड. फार्टलेक is a Swedish term. Fartlek is a Swedish term which means speed play. Which means speed play or play with speed. This training method was developed by Gustav Holmer. Gustav Holmer. He was the coach in Sweden. In this training method, एक एथलीट जो होता है वो स्टार्टिंग लाइन से दौड़ता है. दिस इज स्टार्टिंग लाइन. स्टार्टिंग लाइन से जब ये दौड़ता है तो ये इसमें जरूरी नहीं होता कि आप स्लो दौड़ो, फास्ट, स्प्रिंटिंग, कुछ भी जो उसके मन में आए वो उसे स्टार्ट कर सकता है. एक एथलीट स्टार्टिंग लाइन से दौड़ता है और उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो पहले से फास्ट दौड़े. वो जॉगिंग भी, स्लो जॉगिंग भी कर सकता है, वो फास्ट भी दौड़ सकता है, वो स्लो भी दौड़ सकता है. वो जो ये स्पीड उसकी है वो उसको चेंज कर सकता है या वो कभी रेस्ट भी कर सकता है. और जो रास्ते हैं उसमें से जो नेचुरल पाथ का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. नेचुरल पाथ यानी रिवर बेड्स, माउंटेन्स, rough and muddy fields, कुछ भी वो रास्ते इसमें ये इस्तेमाल कर सकता है अपनी रनिंग में. इस ट्रेनिंग मेथड में स्टार्टिंग लाइन से ये स्टार्ट करता है यहां से, और ये जो नेचुरल, जो कुदरती जो रास्ते हैं, जो कुदरती जो ट्रैक्स हैं, नेचुरल ट्रैक्स, इन्हीं नेचुरल ट्रैक्स में से उनको दौड़ना होता है. ये जब वहां से दौड़ते हैं, ये इसके लिए जरूरी नहीं होता
यानी इसको कोई कंपेल नहीं करता कि आपको फास्ट ही दौड़ना है। ये जॉगिंग से भी स्टार्ट कर सकता है, स्लो रनिंग से, फास्ट रनिंग से, जो उसके मन में आए ऐसे वो दौड़ सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन दैट प्लेज अ मैंडेटरी रोल इन फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड। इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड। सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसके कोच उसके साथ नहीं होते। ये खुद दौड़ता है रिवर बेड से, ये नेचुरल जो ट्रैक है वहां से ये दौड़ता है। और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, ही हैज टू फिनिश इन द डिजायर्ड टाइम। लेकिन इसको फिनिश करना होता है एक मुकर्ररा वक्त पे, यानी एक टाइम जो उसको दिया जाता है उस टाइम पे इसको ये फिनिश करना होता है। एंड इन दिस ट्रेनिंग मेथड वी आल्सो डेवलप बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक एंड्योरेंस, क्योंकि कभी ये स्लो जॉगिंग करता है, कभी ये स्लो दौड़ता है, कभी ये फास्ट दौड़ता है, कभी ये रेस्ट करता है, कभी या इंटरवल ट्रेनिंग भी इससे डेवलप करते हैं, और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड भी इसमें आता है। और क्योंकि ये कभी इंटरवल में करते, 5 मिनट की ब्रेक ली उसके बाद भी दौड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि इसके कोच उसके साथ नहीं होते हैं। ये चीज का यहां पे ध्यान रहे। तो आज हमने पढ़ा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड एंड फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड, एंड बोथ ट्रेनिंग मेथड्स are used to develop endurance, and endurance is the ability to deliver oxygen and nutrients to the tissues and remove wastes over the sustained period of time. अब ये क्योंकि इस endurance को हम डेवलप करते हैं स्विमिंग से या रनिंग से। These are the two methods in which we can develop the endurance of an athlete. Now interval training method. Interval training method. Interval training method that the exercises must perform in intervals. This training method was developed by Waldemar Grechler. He was the professor at University of Freiburg, Germany. Waldemar Grechler, a professor at the University of Freiburg, Germany, and his athletes worked closely with Dr. Hans Rindel. His athletes, they worked closely with Dr. Hans Rindel. He was the physiologist, and they developed interval training method. Interval training method. Waldemar Grechler, he was the professor at the University of Freiburg, Germany, and his athletes worked closely with Dr. Hans Rindel. He was the physiologist, and they worked closely with this Hans Rindel. And finally, what they do, they introduced this training method, interval training method. Rindel's great contribution was his understanding the importance of cardiovascular conditioning. Cardiovascular conditioning, and his devising a training scheme that would maximize the cardiovascular endurance. एक ऐसी स्कीम बनाना जिससे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है
इसको मैक्सिमम कर सके, ज्यादा बढ़ा सकें, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को उसको बढ़ा सके। क्योंकि रिंडेल को इसको पता था, ग्रेशलर को इसको पता था कि ओनली द स्ट्रॉन्ग लेग्स कैन नॉट मेक यू विन इन एनी इवेंट। किसी भी इवेंट में सिर्फ आपकी लेग्स, आपकी स्ट्रॉन्ग लेग्स आपको किसी भी इवेंट में अकेले नहीं जिता सकती। अगर किसी एथलीट, कोई एथलीट ये सोचेगा कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग लेग्स है और इन स्ट्रॉन्ग लेग्स की वजह से मैं कोई रनिंग इवेंट, फास्ट और स्लो रनिंग इवेंट जीतूंगा ओलंपिक गेम्स में या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में, तो वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता जब तक कि उसकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ठीक नहीं हो, जब तक कि वो पहले अपनी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ना बढ़ाए। तो इसका ग्रेशलर का यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसने बता दिया एक एथलीट को किसी भी कंपटीशन में जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कार्डियोवैस्कुलर एबिलिटी और कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग। इसको हमने इंप्रूव करना है पहले, और इसके लिए उसने बताया कि इसको जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, इस स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना है। Stroke volume, we all know that stroke volume, it is the amount of blood pumped either by left or right ventricle, but per beat ये stroke volume है। इस stroke volume को हमने बढ़ाना है, क्योंकि जब ज्यादा सप्लाई आ जाएगी ब्लड की, और उससे क्या होगा, जब ये बढ़ेगी, जो एबिलिटी बढ़ेगी, जो मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, जो पर बीट में जो ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है, जब ये स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे एक एथलीट अगर पार्टिसिपेट करेगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो उसकी बढ़ेगी, और वो किसी भी इवेंट में, चाहे लॉन्ग रनिंग इवेंट हो या शॉर्ट रनिंग इवेंट में हो, इसमें वो अच्छा कर सकता है और जीत भी सकता है। इसलिए एक एथलीट के लिए जरूरी है कि वो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है अपनी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को दे। जब उसकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ेगी तभी वो किसी इवेंट में जीत सकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्रेशलर का है, क्योंकि इसने बताया कि सबसे पहले एक एथलीट को अंडरस्टैंड करना होता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को, उसको बढ़ाना होता है अपना स्ट्रोक वॉल्यूम। जब उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगी। जब उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो वो किसी भी कंपटीशन में, किसी भी वक्त, कहीं पे भी वो जीत सकता है। इसलिए उसने इससे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को इंप्रूव करने से बेहतर है कि एक इंसान पहले अपनी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ठीक करे, जो उसको किसी भी इवेंट में जीतने में बहुत हेल्प कर सकती है। विदाउट कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस किसी भी एथलीट के लिए इंपॉसिबल है, किसी भी मतलब कोई भी इवेंट में जीतना उसके लिए इंपॉसिबल है अगर उसकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ठीक नहीं, या अगर उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, अगर उसका स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज गिवन टू इंक्रीज दिस स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट। इट इज ऑल अबाउट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। एंड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड ये बोलते हैं कि हमें कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूअसली रेस्ट पीरियड के बगैर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उस पे हमारे हार्ट पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इसको ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि हमें चाहिए जो भी कोई एक्सरसाइज करे हम इंटरवल्स में करें, क्योंकि जब हम इंटरवल्स में कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उससे जो हार्ट है इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। In order to improve the efficiency of our heart, we must perform the exercises in intervals, but not continuously. We must not, हमें नहीं चाहिए कि कोई भी कंटिन्यूअसली हमें कोई एक्सरसाइज करे।
हमें चाहिए रेस्ट पीरियड, इस रेस्ट पीरियड से हमारी कार्डियोवैस्कुलर एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इट इज ऑल अबाउट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड।